Good morning, guys. Today, here we are going to start with our Unit 3 of DA, Lecture 1. The unit is Greedy and Dynamic Programming. So let's start with first greedy method. So what is greedy method? So that is depend on a greedy principle, and principle or greedy method is typically used to solve the optimization problem, where you have to find out a best solution that can be either maximum or minimum, like an AppSec where you have to find out a maximum profit, or you can also take an example of finding a best route from going from one location to another location with minimum cost and minimum time. This is called as a optimization problem. Most of these problem have n inputs, so n inputs are given to you, and they require us to find out a subset from that n input which is going to satisfy given constraint. So some condition is given to you, so you have to consider or you have to take an input in such a way that that should satisfy the constraint. So any subset that satisfies this constraint or condition is called as a feasible solution. So feasible solution means a solution which is satisfying the given constraint. Now we are required to find a feasible solution that either maximizes or minimizes a given objective function. So while you are solving this problem, some objective function is given to you, and that can be either finding a minimum or maximum or minimum value. सो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिमाइजेशन. तो फिजिबल सॉल्यूशन बहुत सारे रहेंगे, उस फिजिबल सॉल्यूशन में से जो बेस्ट वाला रहेगा दैट इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन. नाउ अगेन द वन मोर important concept in greedy method is called as the subset paradigm. In subset paradigm, we have to devise an algorithm that works in stages. Like example, uh, like consider the input in an order based on some selection procedure and use some optimization measure for selection procedure. So here in your algorithm you have to work step by step, stage by stage, and consider the inputs in order based on some कोई selection procedure दिया होगा या कुछ तो condition दिया होगा, उसके ऊपर से आपको inputs को consider करते जाना है. And at every stage, you have to examine an input to see whether it leads to an optimal solution or not. So while you are considering an input, so you have to see that by adding that input in your solution, does it is giving you an optimal solution? If yes, just consider it. So if the inclusion of input into the partial solution yields an infeasible solution, then discard that input, otherwise add it to the partial solution. तो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलोगे तो आपको कुछ ना कुछ इनपुट मिलता जाएगा. जैसे आपको अगर 10 इनपुट से उसमें से फर्स्ट इनपुट आपने ऐड किया, सेकेंड इनपुट ऐड किया, थर्ड इनपुट लिया, अगेन यू हैव चेक दैट कि ये इनपुट ऐड करने के बाद मुझे फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. अगर फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है, so just add that input in your solution vector. Otherwise, if it is giving you an infeasible solution, just discard it. So depend on your feasibility criteria, you have to either add the input into the solution vector or you have to remove it. Now next is a control abstraction for greedy. So here function with C as a set means the input that we have to consider for finding a feasible solution. S is a solution vector. Currently there is no value in a solution vector, so the value is phi, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं उसके अंदर. Next, while not solution and C not equal to phi do, यानी जब तक हमको either solution नहीं मिल जाता है और जब तक सारे के सारे इनपुट हम लोग ट्राई करके नहीं देख लेते हैं, तब तक हमको ये वाला जो लूप है इसके अंदर रोटेट करना है. सो यू हैव टू स्टार्ट विद बिगिन x इक्वल टू सिलेक्ट c, देन c इक्वल टू c माइनस x. इसका मतलब
कोई भी एक रैंडम इनपुट जो है पहले सिलेक्ट करो. नाउ हियर इट इज नॉट रैंडम, इट इज डिपेंड ऑन सम क्राइटेरिया. तो जैसे से हम एग्जांपल देखेंगे आपको समझ जाएगा कि कौन सा इनपुट पहले कंसिडर करते हैं. सो कंसिडर अ फर्स्ट इनपुट एंड असाइन दैट वैल्यू टू द एक्स. नाउ रिमूव दैट एक्स वैल्यू फ्रॉम योर इनपुट सेट, ताकि एक बार हमने जिस इनपुट को कंसिडर कर लिया उसको वापस हमको चेक करने की जरूरत नहीं है. तो इनपुट सेट में से एक्स की वैल्यू माइनस की. नाउ ऐड दैट एक्स इनटू द सॉल्यूशन वेक्टर. जो इनपुट आपने कंसिडर किया उसको सॉल्यूशन वेक्टर एस में यूनियन के फंक्शन से ऐड करो एंड चेक करो कि ऐड करने के बाद आंसर फिजिबल आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. इफ यू आर गेटिंग अ फिजिबल सॉल्यूशन, then add that x into the solution vector finally, and that's it, end. And if it is not giving you the feasible solution, then don't add it and just remove it from solution list. And at the end, after completing this while loop, at the end you have to check if solution s, then return s, else return phi. यानी अगर आपको सारे इनपुट चेक कर लिए and if you got a solution, then return that solution. But if you didn't got a solution, you have to return a phi, means null value, कि कोई भी solution नहीं मिला है. So this is a control abstraction for greedy. तो कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है. सी यानी the objects or inputs, s is a set of objects that have already been used, means solution vector. Then checking a feasibility, checking a solution, selecting a next object, etc. Now let's start with a knapsack problem using greedy method. So first we will start with knapsack problem. Now exactly what is a knapsack problem? So knapsack problem is also a problem of optimization, where given a set of n items and each with a weight w and profit p. यानी n आइटम्स आपको दिए होंगे, हर आइटम के साथ दो चीजें एसोसिएटेड रहेगी. वन इज अ वेट w and second is a profit p. Now determine the number of each item to include in knapsack such that the total weight is less than or equal to given knapsack limit m. तो knapsack का एक लिमिट भी दिया जाता है, उस लिमिट को हम बोलते हैं m. सो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि एक knapsack इज नथिंग बट अ वन काइंड ऑफ बैग. जैसे आपको एक बैग दे दी है और बहुत सारे आपको आइटम्स दे दिए है, और आपको बोला कि अब ये आइटम्स उस बैग के अंदर डालो, लेकिन उस बैग की कैपेसिटी है कि खाली एम लिमिट तक का ही वेट वो क्या कर सकती है, बैग अफोर्ड कर सकती है. तो आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स डालने हैं ताकि उसका जो वेट है, उस आइटम का जो वेट है, ये नैपसैक की कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो, लेकिन जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है वो ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद वो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, तो प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम. सो दिस problem of knapsack is maximization problem. So we can say that in mathematical form you can say that we have to maximize the profit of object. X is a object that you are going to consider from the n number of objects. तो जो भी ऑब्जेक्ट आप कंसिडर कर रहे हो उसके प्रॉफिट का जो समेशन है ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए सॉल्यूशन का. सब्जेक्ट टू मींस व्हाट इज अ कंडीशन, कि जो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो उसका जो वेट है, उस वेट का जो एडिशन है, ये एडिशन नैपसैक की जो कैपेसिटी एम उससे लेस या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, उससे उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए. So there are two types of knapsack problem. One is 0-1 knapsack problem and second is the fractional knapsack problem. So 0-1 knapsack problem में क्या होता है कि आइदर आप उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से बैग में डालते हो या तो फिर बिल्कुल भी नहीं डालते हो, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट का पोर्शन नहीं कंसिडर कर सकते, मतलब उसके पार्ट्स नहीं कर सकते. जैसे एग्जांपल ले लो कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, आपको लेना है तो आपको ये पूरा ही लेना है, आप उसको ऐसा आधा या कोई पोर्शन में नहीं ले सकते. बट सेकेंड इज अ फ्रैक्शनल नैपसैक. फ्रैक्शनल मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक अ होल ऑब्जेक्ट और नो नीड, एक तो आप पूरा ले सकते हैं या नहीं पूरा नहीं ले सकते, ऐसे कुछ नहीं है इसमें. इसमें आप उस ऑब्जेक्ट को कुछ पोर्शन में भी ले सकते हो. जैसे एग्जांपल लो, एग्जांपल कोई स्वीट में आप स्वीट लेने को जाते हो तो जरूरी नहीं है कि पूरा बॉक्स उठा के लेके आते हो, आप उसको बोलते हो 25 ग्राम चाहिए, इतना चाहिए.
So you can take a portion of that particular object also. So where you can take a object's value between 0 and 1, मतलब 0, 0.1, 0.2, 0.5. So ये से सारी वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो इसके अंदर. नाउ नेक्स्ट इज ग्रीडी एल्गोरिथम का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे. सो जब भी आपको नैपसैक का एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल हो कि यहाँ पे n इक्वल टू 3 यानी 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, नैपसैक की कैपेसिटी जो है वो 20 दी है, और ये 3 ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉफिट एसोसिएटेड जो है दैट इज P1, P2 एंड P3. दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट, सेकेंड ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट, दैट इज 25, 24 एंड 15. एंड W1, W2, W3 इज अ वेट एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट. तो जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट 18, देन सेकेंड इज 15 एंड थर्ड इज 10. तो अगर ये एग्जाम्पल आपको दिया है तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप खाली आपको याद रखने, वेरी सिंपल स्टेप. फर्स्ट, सॉर्ट द प्रॉफिट एंड वेट रेशियो इनटू द नॉन डिक्रीजिंग, सॉरी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जिसके प्रॉफिट और वेट का रेशियो हाईएस्ट रहेगा वो सबसे पहले पोजीशन पे आएगा, और जिसके प्रॉफिट और वेट का रेशियो सबसे कम रहेगा वो सबसे लास्ट में आएगा. सो यहाँ पे हम लोगों ने हर ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के प्रॉफिट और वेट का हम लोगों ने क्या किया, रेशियो निकाल लिया है. That is 25 by 18, 24 by 15 and 15 by 10. तो 25 by 18 जो है इसका वैल्यू आ गया है 1.39, इसका 1.6 एंड इसका आ गया है 1.5. तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कर लिया. ओके, नाउ सेकेंड स्टेप क्या है कि पुट द ऑब्जेक्ट into the knapsack according to the sorted sequence as possible as we can. मतलब क्या कि सबसे हाईएस्ट जिसका रेशियो है उसको सबसे पहले नैपसैक में पुट करना है. तो अब इसमें सबसे हाईएस्ट रेशियो किसका है, ऑब्जेक्ट 2 का है. तो अभी हमारा नैपसैक अभी क्या है, वैल्यू क्या थी, 0 थी. अब 0 में हम लोगों ने कौन सा ऑब्जेक्ट डाल दिया, I2 ऑब्जेक्ट डाल दिया. तो जैसे ही I2 ये ऑब्जेक्ट डाल दिया तो अब नैपसैक की कैपेसिटी 0 को छोड़ के, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 15 हो गई है अभी. तो अब ये हो गई है टोटल 15. अब हमने चेक किया इस 15 लेस देन 20, क्योंकि नैपसैक की कैपेसिटी 20 है. यस, 15 इज स्टिल लेस देन 20, अभी भी 20 से लेस है. तो इसका मतलब हम और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं. तो 1.6 के बाद जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है जो उससे नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आता है, दैट इज जिसका रेशियो 1.5 है, मतलब थर्ड ऑब्जेक्ट. सो हम लोगों ने थर्ड ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, लेकिन थर्ड ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 15, और अभी हमारे पास वेट कितना बचा है. टोटल नैपसैक की कैपेसिटी कितनी थी, 20, जिसमें हमने जो फर्स्ट I2 नाम का ऑब्जेक्ट डाला उसका वेट कितना था, 15. तो अभी टोटल वेट खाली कितना बचा है जो हम नैपसैक में ऐड कर सकते हैं, दैट इज ओनली 5 वेट बचा है. और ये जो ऑब्जेक्ट है थर्ड, इसका वेट कितना है, 10. तो इसका मतलब हमको कितना उसका पोर्शन है जो कंसिडर करना है. तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ अ नैपसैक. ओके, और उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो, ओके सॉरी, तो फॉर्मूला क्या है कि जब हमारा जो नैपसैक में हम लोगों ने क्या किया था, सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट जब डाल दिया था, ओके, तो इसका टोटल वेट कितना था, 15. तो अब हमारे पास जो टोटल वेट बचा है नैपसैक में वो कितना है, 20. 20 में से मैंने 15 माइनस कर दिए, तो अभी वेट कितना बचा है, 5 बचा है. और अभी हमको जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है वो कौन सा था, थर्ड वन वाला ऑब्जेक्ट. लेकिन थर्ड वन जो ऑब्जेक्ट है उसका टोटल वेट कितना है, 10, और हमारे पास अवेलेबल कितना है, 5. तो ऐसे कंडीशन में हम उसका पूरा ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, लेकिन हम उसका पोर्शन ले सकते हैं. तो कितना पोर्शन लेना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वेट अलाउडेड. ओके, मैक्सिमम वेट अलाउडेड माइनस करंट वेट ऑफ नैपसैक डिवाइडेड बाय वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो जैसे अभी हमको मैक्सिमम कितना वेट अलाउड है, 20 वेट इज अलाउडेड, माइनस करंट वेट, मतलब नैपसैक पे करंट वेट कितना है, 15, डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, कौन से नंबर का ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं हम, थर्ड नंबर का ऑब्जेक्ट. तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 10. तो अगर हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने के बाद जैसे वैल्यू क्या आ गया, 5/10. तो अगर इसको मैं डिवाइड करूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब हमको कितना रेशियो लेना है, 1/10.
2 रेशियो जो है ये लेना है हमको थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। तो जैसे हम उसका अगर हम वेट का हाफ पोर्शन लेंगे तो प्रॉफिट का भी हमको क्या लेना पड़ेगा, उसका हाफ पोर्शन लेना पड़ेगा। अब इसके बाद नैपसैक हमारा पूरा फुल हो गया है, तो हमको अभी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमारा अभी सॉल्यूशन क्या आ गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट 0, मतलब हमने वो पुट ही नहीं किया। सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है ये वाला पूरा के पूरा हम लोगों ने नैपसैक में पुट किया था। और थर्ड ऑब्जेक्ट जो है उसका हमने क्या किया था, हाफ पोर्शन जो है वो नैपसैक में पुट किया था, तो वो हम लोगों ने डाल दिया। तो सेम हमको प्रॉफिट कितना मिलेगा, जैसे सेकेंड ऑब्जेक्ट पूरा लिया है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है उसका प्रॉफिट कितना है 24, जो हमने लिख लिया यहाँ पे। ओके, आफ्टर दैट थर्ड ऑब्जेक्ट जो है इसका, थर्ड ऑब्जेक्ट जो है इसका हमने कितना पोर्शन कंसिडर किया है, हाफ पोर्शन। तो 15 का हाफ यानी कितना आ गया 7.5, तो इसका एडिशन किया तो टोटल प्रॉफिट कितना बन गया 31.5। तो जब तक नैपसैक में कैपेसिटी है आप पूरा ऑब्जेक्ट डालो, अगर उसका ऑब्जेक्ट का वेट और नैपसैक का वेट जो है वो मैच हो रहा है या ऑब्जेक्ट का वेट नैपसैक से कम है। लेकिन अगर वेट एक्सीड हो रहा है तो यू हैव टू टेक अ पोर्शन बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, नैपसैक का वेट माइनस जितना नैपसैक में अभी आपने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट डाला है तो वो वेट डिवाइडेड बाय जो नया ऑब्जेक्ट आपको डालना है उसका वेट। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर नैपसैक। नाउ नेक्स्ट इज अ job sequencing greedy method that we'll see in our next lecture.